Good morning children, welcome to class 1 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes computer series 1. Children, in our previous video we were doing chapter 7, that is mouse. So children, I hope you all must have watched that video. So children, today we are going to do the book exercise of the same chapter. Before going to the book exercise, children, we will revise the chapter once again. So children, let us start. So children, chapter 7, that is mouse. In this chapter, children, we studied all about mouse. As we know, mouse is one of the important part of computer and it is also known as pointing device. As we know children, computer is used for pointing something on the screen to select or move. As I told you children, mouse is also used to draw and पेंट. अगर हम ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं कंप्यूटर पे तो हम माउस से ही ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं. दूसरी चीज़, स्क्रीन में जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, अगर हम उसे मूव करना है, मूव मीन्स मूविंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और या उसे पॉइंट करना है, शो करना है, दिखाना है, या फिर हमें उसे सेलेक्ट करना है, कोई भी आइटम, एनीथिंग displayed on the screen, we need a mouse. So children, these are the main purpose why we need mouse. So children, as you know, the mouse name itself indicate that this mouse, which is the part of a computer, look like a mouse which you can find in your home. So children, everybody, most of the houses have mouse. मीन्स चिल्ड्रन द ओरिजिनल माउस, जिसे हम चूहा कहते हैं. आप लोगों में से किसी के भी कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मेरे घर में कभी माउस नहीं होता या चूहे नहीं होते. तो आप सभी ने चूहा देखा होगा. तो चिल्ड्रन, जो ये माउस होता है कंप्यूटर का, इसका भी शेप कुछ माउस की तरह ही होता है, इसीलिए हमने इसका नाम माउस रखा है. वी कॉल इट एज माउस. सो चिल्ड्रन, features of mouse. The features of mouse means what all parts or the facilities or the uses we have we get from the mouse. So children, as you can see here, this mouse is having a right button. You can see here children, there is a right button. This right button is towards the right and left button is towards left side, and in the middle there is a wheel. Children, this wheel is also like a button only, but it is used टू स्क्रॉल. इसे ऊपर नीचे, हम जैसे व्हील गोल गोल घूमता है वैसे ही हम उसे ऊपर गोल घुमा करके फिंगर से ऊपर नीचे स्क्रीन स्क्रॉल करना हो, या मेनू स्क्रॉल करना हो, या कोई लंबी सी लिस्ट हो हम देखना चाहते हो, या फिर हमने कंप्यूटर पे जो काम किया है वो बहुत लंबे बहुत सारे पेजेस में किया हो. तो इफ़ यू वांट टू चेक इट पेज बाय पेज चिल्ड्रन, you need to scroll it, and for that we need this button. So actually children, there are two buttons, and other than two buttons we have one wheel that is used to scroll the screen or the page or the menu. If you have opened any list, that also you can scroll and see the ones who are at the bottom. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे इसमें वायर भी होता है. अब जैसा कि आप जानते हो, किसी भी चीज़ को हम किसी से अटैच करते हैं तो वी नीड अ वायर. तो यहाँ पे माउस को भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप में अटैच करके या जोड़ करके तभी इससे काम करते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, नाउअडेज वी आर हैविंग वायरलेस माउस ऑल्सो. आजकल हमारे पास ऐसे माउस आ रहे हैं जिसमें कोई वायर नहीं होता है, एंड इट कैन वर्क सेम एज दिस माउस विदाउट वायर ऑल्सो. तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ माउस चिल्ड्रन. अब आपको लेफ्ट बटन राइट बटन समझ में आ गया, तो वी कैन रीड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड. सो चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज how to hold a mouse. So holding a mouse, so it is very important to know how to hold a mouse. So children, you will be able to understand when you see the picture. Here there is a picture. In this picture you can see how the mouse is being hold. यहाँ पे हाथ जिस तरह से रखा हुआ है, इसी तरह हमें माउस पकड़ना है. तो चिल्ड्रन, हमारा जो पाम है उसके नीचे की तरफ होगा, माउस के नीचे की तरफ हमारा पाम होगा, और उसके बाद जो दोनों फिंगर होते हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज इंडेक्स फिंगर एंड व्हाट इज मिडिल फिंगर. इंडेक्स फिंगर का मतलब होता है वो फिंगर जिससे हम पॉइंट करते हैं. बच्चों, अगर आपको किसी को भी दिखाना होता है, आप वो जा रहा है या वो है, तो हम अपनी उंगली को इस तरह से करते हैं ना, लाइक दिस, वी डू आवर फिंगर लाइक दिस, तो इसे हम पॉइंटिंग कहते हैं.
तो हम अपने इंडेक्स फिंगर से किसी को भी पॉइंट करते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन, माउस का काम भी यही होता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करना। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड साइड वाले बटन पे रखेंगे, लेफ्ट बटन पे हम अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे। इसके अलावा चिल्ड्रन, अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट और अंडरस्टैंडिंग द मिडिल इंडेक्स फिंगर इज दैट इट इज़ जस्ट बिसाइड द थंब। ये एकदम थंब के बगल में होता है और उसके बाद उस फिंगर के बगल में एक मिडिल फिंगर होता है जो कि सबसे लंबी होती है और वो सबसे बीच की होती है। मतलब हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है, तो 2 एक साइड और बीच में जो फिंगर है उसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं। तो उस मिडिल फिंगर को हम राइट हैंड में राइट साइड वाले बटन पे रखेंगे। तो इस तरह से चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये लेफ्ट बटन है जहाँ पे हमने इंडेक्स फिंगर रखा है और ये राइट बटन है जहाँ पे हमने अपना मिडिल फिंगर रखा है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन है। अगर हमको स्क्रॉल बटन यूज़ करना है तो हम अपने इंडेक्स फिंगर को ही स्क्रॉल बटन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देयर आर 2 buttons. On left hand button we keep our index finger, on right hand button we keep our middle finger. उन दोनों के बीच में जो व्हील है उसको हम चलाने के लिए अपने ये जो इंडेक्स फिंगर है इसी को यूज़ करते हैं। Whenever we need to scroll the screen, हम यहाँ से फिंगर को उठा करके फिर यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। Then children, we have this click. What is this click? क्लिक का मतलब होता है टू प्रेस द बटन्स। अब यहाँ पे जब हम क्लिक एक बार प्रेस करेंगे बटन को तो उसे हम क्लिक कहते हैं। एंड क्लिकिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस बटन। दीज 2 buttons आर फंक्शन ओनली व्हेन दे आर क्लिक्ड। तो क्लिकिंग मतलब प्रेसिंग द बटन, बटन को प्रेस करना, माउस बटन्स को प्रेस करना क्लिक करना कहलाता है। तो जब हम क्लिक करते हैं तभी ये फंक्शन करता है। देन चिल्ड्रन, एंड देयर इज फंक्शन ऑफ माउस। अब इसको क्लिक करने का भी तरीका होता है चिल्ड्रन। देयर इज डिफरेंट मेथड्स फॉर क्लिकिंग दिस बटन। इफ़ यू वांट टू क्लिक इट वंस, अगर आप एक बार, वो भी लेफ्ट बटन को, अगर लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करो, एक बार का मतलब होता है सिंगल। इफ़ यू आर प्रेसिंग लेफ्ट बटन वंस, दैट मीन्स इसे हम सिंगल क्लिक कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसको 2 बार प्रेस करते हैं, किसको? लेफ्ट बटन को। अगर हम लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डबल क्लिक। उसके बाद दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्लिक। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्लिक इज राइट बटन क्लिक। अगर राइट बटन क्लिक को आप एक बार क्लिक करते हो, राइट माउस बटन को, तो उसको हम राइट क्लिक कहते हैं। सो चिल्ड्रन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लिक। 2 clicks are related to left button and 1 click is related to the right button. लेफ्ट बटन को एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। लेफ्ट बटन को अगर एक बार क्लिक करेंगे तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो उसे डबल क्लिक कहते हैं। और अगर उसके बाद हम राइट बटन को क्लिक करेंगे तो उसे हम राइट बटन को राइट क्लिक कहेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के क्लिक के बारे में हमने पढ़ा। एंड चिल्ड्रन, उसके बाद अनदर फंक्शन ऑफ द माउस इज टू ड्रैग अ माउस। ड्रैग हम माउस को कैसे करते हैं? एक बार प्रेस करने के बाद हम उसी पोजीशन में, अगर हम उसको जिस भी चीज़ के ऊपर हमने सेलेक्ट करके ड्रैग किया हुआ है, प्रेस किया, उसको उठा करके दूसरी जगह लाना। ड्रैगिंग इज मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी आइटम को, किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाना। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हम ड्रैग कब करते हैं? व्हेन वी नीड टू मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि जब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं एक्टिविटी में, तो वहाँ पे हम बॉक्स में से जब वर्ड्स को उठा करके ड्रैग करके ला करके फिर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करते हैं। तो चिल्ड्रन, इसे हम ड्रैग कहते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस माउस इज ड्रैगिंग। ड्रैगिंग करने से ही हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं। तो यू कैन ड्रैग द माउस टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द माउस टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। अगर आपको डिफरेंट शेप्स भी ड्रॉ करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम चूज़ करते हैं किसी भी शेप को, उसके बाद ड्रैग करके हम उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन, शेप्स बनाने के लिए भी हमको ड्रैग करने की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट चिल्ड्रन, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द माउस इज देयर इज़ अ पॉइंटर। एक पॉइंटर होता है जो कि हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। दिस पॉइंटर इज़ लाइक अ
arrow shape. It is just a arrow shape. This arrow shape is used to point something on the screen. इसीलिए हम इसको mouse pointer कहते हैं. ये point करता है किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे, लेकिन it is controlled by the mouse. क्योंकि जब हम माउस को हिलाते हैं, घुमाते हैं, for example if you want to test children, आप अगर देखना चाहते हो तो if you move your mouse, the mouse pointer will also move on the screen. तो ये इसका मतलब the mouse pointer is controlled by the mouse, and इसीलिए जब भी हम माउस को मूव करते हैं, माउस पॉइंटर भी मूव करता है. तो यहाँ पे whenever you move the mouse, a small arrow also moves on the screen of the computer. The small arrow is known as mouse pointer. इस छोटे से arrow को हम mouse pointer कहते हैं. तो children, this is all about mouse, and I hope you all must have understood. Now children, self-evaluation. Our next topic is self-evaluation. As we know children, in every chapter we have at the end of the chapter few statements which are from the chapter. We go through these statements, हम इन statements को पढ़ते हैं and find out how much we have learned and whether we agree with the statement or not. तो यहाँ पे I know that a mouse is a pointing device. So children, I know that a mouse is a pointing device. So here children, a mouse is a pointing device. अभी मैंने आपको बताया कि as mouse is used for pointing something on the computer screen, it is known as pointing device. So I agree with this statement. I hope you all agree with this statement children, कि mouse जो होता है हम उसको pointing device की तरह use करते हैं. I know that a mouse has two buttons and a wheel. As I showed you, there are two buttons on the mouse. One is left button and the other is right button, and in between these two buttons children we have a wheel. So we agree with this statement also. I know that pressing the button of a mouse is called clicking. I know that pressing the button of a mouse is clicking. माउस के बटन को दबाने को हम क्लिकिंग कहते हैं या क्लिक करना कहते हैं, और जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे माउस विल नॉट be able to perform any work. I know that a small arrow on the monitor that moves when a mouse is moved is called mouse pointer. I know that a small arrow on monitor that moves when a mouse is moved is called mouse pointer. So children, this also we have learnt and understood from the chapter. There is a small pointer shown on the screen, and as we move the mouse, the pointer also moves on the computer screen. तो बच्चों, we have studied in the chapter that mouse is a pointing device. Why mouse is a pointing device? कोई भी चीज़ अगर आपको स्क्रीन पे दिखाना है, शो करना है, तो आप अपने माउस पॉइंटर को उस चीज़ के सामने लेके जाते हो और आराम से उस चीज़ को दिखाते हो या शो करते हो, पॉइंट करते हो. जैसे कि हम अपनी उंगली से कोई चीज़ पॉइंट करते हैं ना, हम इंडेक्स फिंगर ये हमारा है, इसको दिखा करके हम कहते हैं वो. अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं ना वो वाली चीज़. अपने मम्मी से आप ज़िद करते हो तो भी कहते हो वो वाली चीज़. तो यू पॉइंट दिस फिंगर, तो वी कॉल इट एज दिस इंडेक्स फिंगर को हम पॉइंटिंग फिंगर कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे भी कोई चीज़ दिखाते हैं या शो करते हैं. तो यहाँ पे सिमिलरली दिस माउस ऑल्सो पॉइंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. कोई भी चीज़ हमको स्क्रीन पे दिखाना है, शो करना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं पॉइंट करने के लिए. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. उसके बाद सेकेंड वन इज चिल्ड्रन, आई नो दैट अ माउस हैज़ टू बटन्स. जो माउस होता है उसमें दो बटन्स होते हैं. एंड अ व्हील. माउस हैज़ टू बटन्स एंड अ व्हील. अब this also we have understood from the chapter that we have seen also. We all use mouse children. हम में से ज़्यादातर लोग, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग माउस यूज़ करते होंगे. ऑनलाइन क्लास आजकल कर आपके ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर भी होगा कुछ लोगों के यहाँ, तो आप लोग माउस यूज़ करते होंगे. यू मस्ट हैव सीन कि देयर आर टू बटन्स प्लस वन स्क्रॉल बटन. और कुछ लोगों के माउस में कुछ लोगों के माउस में सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट बटन भी हो सकता है, तो दो भी हो सकता है, और कभी कभी दो के अलावा स्क्रॉल बटन भी होता है. ज़्यादातर स्क्रॉल बटन भी होता है. तो यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट. नाउ आई नो दैट प्रेसिंग द
button of the mouse is called clicking. This also we very well know, क्योंकि जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक माउस विल नॉट वर्क, और माउस के लेफ्ट राइट बटन को प्रेस करने को हम क्लिक करना कहते हैं. Now I know that a small arrow on the monitor that moves when a mouse is moved is called mouse pointer. This also we know very well children कि there is a small arrow shown on the screen. हमेशा हमको स्क्रीन के ऊपर एक स्मॉल एरो दिखाई देता है, और ये जो एरो होता है चिल्ड्रन, दिस एरो इज़ यूज्ड टू शो समथिंग और टू पॉइंट समथिंग, तो इसीलिए हम इसको माउस पॉइंटर कहते हैं. पॉइंटर तो ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये माउस ही कंट्रोल करता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय माउस, सो इट इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. एंड इफ़ यू वांट टू प्रूव इट कि हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड, इज़ इट कंट्रोल्ड बाय द माउस और नॉट. सो चिल्ड्रन, आप अगर माउस को मूव करोगे तो आप देखोगे कि जो एरो होता है स्क्रीन पे वो भी मूव करता है. तो दिस शोज दैट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द माउस. एज योर माउस मूव्स, इवन द एरो ऑन द स्क्रीन दैट ऑल्सो मूव्स. सो दिस शोज दैट माउस, इट इज़ अ माउस पॉइंटर, वो माउस का पॉइंटर है. सो विद दिस चिल्ड्रन वी एग्री विथ ऑल द स्टेटमेंट्स विच आर गिवन हियर, एंड वी हैव understood also, and I hope you all have understood these points. Now children, tick the correct answer. A mouse is a dash device. A mouse is a dash device. Children, here we have 3 options. यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है. यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है. फर्स्ट क्वेश्चन है A, टिक द करेक्ट आंसर. A में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, A mouse is a dash device. Holding device, holding मतलब पकड़ना, pointing device और typing device. So children, holding और typing तो कोई word ही नहीं है mouse के साथ related. So these 2 options are wrong. Pointing device, just now we have studied and understood also that a mouse is a pointing device. So आप यहाँ पे tick करोगे, you will put a tick here and write here pointing. P-O-I-N-T-I-N-G. तो यहाँ पे जो हमारा माउस होता है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट करता है, इसीलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. उसके बाद चिल्ड्रन सेकेंड वाला है, इन सेकेंड वन we can see children here, a dash is used for drawing and painting on computer. So this also we have understood कि we use mouse for drawing and painting. So children, here we have mouse, keyboard, CPU. As we know, keyboard is used to type words or numbers. CPU is used to do any kind of processing, but mouse is used for drawing and painting. आप you all must be doing drawing and painting on the computer, चाहे आप स्कूल में करते होगे या घर में करते होगे. ज़्यादातर लोग ड्राइंग और वगैरह कंप्यूटर पे करते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इफ़ यू आर ड्राइंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर और इफ़ यू आर कलरिंग समथिंग और पेंटिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर, यू नीड अ माउस. बिना माउस के आप ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकते हो. सो हियर ड्राइंग पेंटिंग के लिए वी नीड अ माउस. सो यू विल राइट M-O-U-S-E, mouse. Now third one children, the small arrow that moves on the screen is called, so children just now I told you there is an arrow which is which always can be seen on the screen. This arrow is called pointer, as it points everything or whatever you want to point on the screen, so it is called pointer. तो इसलिए हम इसको pointer कहते हैं. And so here you will write P-O-I-N-T-E-R, pointer. इसको हम pointer कहते हैं. So children, let us revise once again. एक बार फिर हम इन चीज़ों को revise कर लेते हैं. Tick the correct answer. A mouse is a device. A mouse is a pointing device. A mouse is a pointing device. So here you will put tick in pointing. A dash is used for drawing and painting on computer. A dash is used for drawing and painting on computer. So mouse is used for drawing and painting on computer. The small arrow that moves on the screen is called
mouse pointer. A small arrow used to the small arrow that moves on the screen is called pointer. So this is all about question number A, children. I hope you all must have understood. Now question number B. So children, in question number B we have true and false. हमारे पास true और false है. Write in box. So children, write in boxes T for true and F for false statement. So children, here there are 4 statements given. You are going to read it out and find out whether it is true or false. आप इसे पढ़ोगे और पता करोगे कि ये सही है या गलत, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है. We have understood also. आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. Now you must be able to tell the answer. So यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे and then we'll find out whether it is true or false. So children, first one is you can draw pictures using a mouse. So children, what is the answer? Is it true or false? You can draw pictures using a mouse. You can draw pictures using a mouse. So children, yes, it is true because we draw pictures with the help of mouse. So here you will write true. आप यहाँ पे लिखोगे true. तो यहाँ पे हम true लिखेंगे. Now, pressing the left mouse button is called single click. Pressing the left mouse button is called single click. Yes children, if you press the left mouse button, it is called as single click. So you will write here true. Now, pressing and releasing the right mouse button is called double click. This is false. Children, अगर आप माउस को एक बार प्रेस करोगे और रिलीज करोगे तो हम उसे राइट क्लिक नहीं कहते, बल्कि उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे pressing the left mouse button is called single click. This is true. But pressing and releasing the right mouse button is called double click is false. Children, why it is false? Children, why it is false? Because it is called dragging. Press करके release करने को हम dragging कहते हैं. इसे हम right button नहीं कहते, double click नहीं कहते. अगर हम किसी चीज़ को press करके छोड़ेंगे तो उसे हम dragging कहते हैं. So this is false. ये हो गया false. This is true and this is also true. Now last one children, we keep index finger on the left button. We keep index finger on the left button. This is also true children. We keep index finger on the left button and we keep middle finger on the right button. तो हम अपना index finger left button पे रखते हैं. This is true. So let us revise it once again. First one children, you can draw pictures using a mouse. You can draw pictures using a mouse. This is true children. As we know, we can draw pictures using a mouse. हम mouse को use करके ही picture draw कर सकते हैं. तो this is true. Press the left mouse button is called single click. एक बार अगर हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं तो उसे हम सिंगल क्लिक कहेंगे. सिंगल मतलब एक होता है और जस्ट आपने प्रेस किया तो वो सिंगल क्लिक हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग, प्रेस करके छोड़ना, द राइट माउस बटन इज कॉल्ड डबल क्लिक. ये फॉल्स है. डबल क्लिक कब होगा? जब हम 2 बार उसको प्रेस करेंगे, वो भी लेफ्ट बटन को. डबल क्लिक कब होगा? जब हम लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, तब वो डबल क्लिक होगा. सो दिस इज फॉल्स. वी कीप इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन. दिस इज ट्रू, क्योंकि हम अपने इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन पे रखते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल विथ क्वेश्चन नंबर 2. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग and you are able to answer these questions. Children, see, match column A with column B correctly. So children, here there are 2 columns. आप यहाँ पे 2 column देख सकते हो on the screen. In one column children, we have different mouses and an arrow. एक arrow हमको दिखाई दे रहा है और हमारे पास different types of clicks show किए हुए हैं on different mouses. First mouse पे you can see children, there is 2 click. That means it is double click. Second is the arrow. इस arrow का मतलब क्या है? This arrow
is nothing but it is a mouse pointer. After that children, we have single click left button, that too single click. और उसके बाद लास्ट वन में राइट बटन सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक. अब चिल्ड्रन इन कॉलम बी द पोजिशन ऑफ दीज क्लिक्स आर रिटन हियर. सो चिल्ड्रन फर्स्ट में वी हैव राइट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड माउस पॉइंटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास है, एक तो है हमारे पास राइट क्लिक, ये राइट क्लिक है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड माउस पॉइंटर. तो ये चार चीज़ें हैं. नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विच वन इज राइट क्लिक, विच वन इज सिंगल क्लिक, which one is double click and which one is mouse pointer. So children, as you can see, नंबर 1 पे हमारे पास 2 बार क्लिक किया हुआ है. यहाँ लेफ्ट बटन है और उसको 2 बार क्लिक किया हुआ है. दिस इज लेफ्ट बटन. एज यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस बटन इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड. ये बटन आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और इसको हमने 2 बार प्रेस किया हुआ है. जब हम किसी को 2 बार प्रेस करते हैं तो हम उसे डबल क्लिक है. 2 मीन्स डबल, तो हम इसको डबल क्लिक के साथ मैच करेंगे. नाउ सो चिल्ड्रन, व्हाट इज डबल क्लिक? डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग लेफ्ट बटन ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स. प्रेसिंग लेफ्ट बटन ट्वाइस यानी 2 टाइम्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस किया हुआ है एंड द क्लिक इज शोन 2 टाइम्स, तो इट बिकम्स डबल क्लिक. सो यू विल मैच दिस विथ डबल क्लिक. देन वी हैव चिल्ड्रन 1 क्लिक. 1 क्लिक का मतलब होता है सिंगल क्लिक. यहाँ पे लेफ्ट बटन को जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो वी कॉल इट एज सिंगल क्लिक. तो हम यहाँ पे इसको सिंगल क्लिक से मैच करेंगे. देन वी हैव, दिस इज सेकेंड पे, ये थर्ड पे है. सेकेंड पे हमारे पास है माउस पॉइंटर. दिस एरो इज नथिंग बट अ माउस पॉइंटर. तो हम इसको माउस पॉइंटर के साथ मैच करेंगे. इसके बाद चिल्ड्रन हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे राइट बटन है. यू कैन सी चिल्ड्रन द डार्क ब्लू कलर्ड बटन इज राइट बटन. पहले हमारा इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन को ब्लू किया हुआ था. नाउ द हाईलाइटेड बटन इज राइट वन. जब हम राइट वाले को एक बार क्लिक करते हैं तो हम इसे राइट क्लिक कहते हैं. राइट बटन को एक बार क्लिक करने का मतलब होता है राइट क्लिक. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव डन मैच द कॉलम ऑल्सो. लेट अस रिवाइज इट. चिल्ड्रन, इन कॉलम ए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिक्स. यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए में अलग अलग तरह के क्लिक हैं. फर्स्ट माउस बटन पे चिल्ड्रन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो डार्क ब्लू कलर का बटन है, दैट इज लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. लेफ्ट माउस बटन, व्हेन वी प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लिक्स दिए हुए हैं, हियर वी हैव 2 क्लिक्स, इट इज कॉल्ड डबल क्लिक. डबल यानी 2 टाइम्स. इसके बाद हमारे पास है ये पॉइंटर. अब पॉइंटर का मतलब होता है something which is used to point something on the screen, any item on the screen. So it is controlled by the mouse, that is why it is known as mouse pointer. इसलिए हम इसको mouse pointer कहते हैं. उसके बाद थर्ड पिक्चर में चिल्ड्रन द सेम बटन, द सेम लेफ्ट बटन इज क्लिक्ड ओनली वंस. एक बार क्लिक हुआ है. जब हम लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे, एक का मतलब होता है सिंगल, तो यू विल जॉइन दिस विद द सिंगल क्लिक. ये हो गया सिंगल क्लिक. इसके बाद चिल्ड्रन लास्ट वाला जो है, यहाँ पे डार्क ब्लू इज टुवर्ड्स द राइट, यानी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट बटन. व्हेन यू प्रेस राइट बटन वंस, इट इज कॉल्ड राइट क्लिक. इसको हम राइट क्लिक कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है. नेक्स्ट में हमारे पास there are some words. Unscramble the following words. Unscramble का मतलब होता है some letters are mixed together. Now you are going to separate it and write it in a meaningful word. अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो हमारे पास नंबर वर्ड्स दिए हैं, उसके नीचे क्लू दिया हुआ है. अब उस क्लू को आप पढ़ करके फिर उस क्लू के अकॉर्डिंग इस ऊपर वाले वर्ड्स को अरेंज करोगे और उस क्लू का आंसर, आपको जो भी क्लू दिया हुआ है उसका आंसर ये वर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला यू कैन सी चिल्ड्रन अ माउस. यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है. अब वर्ड के लिए यहाँ पे है माउस. अब माउस में NGTPINOI,
फिर EVDIEC। सो चिल्ड्रन ये सेकेंड वाला तो मुझे समझ में आ रहा है कि डिवाइस है। अब पहला क्या है, जब माउस से रिलेटेड है, डिवाइस भी दिया हुआ है, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आंसर है ये है पॉइंटिंग डिवाइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस, POI लिखा है, ये N है, TING, पॉइंटिंग, DEVICE, डिवाइस, ये हो गया पॉइंटिंग डिवाइस। अ माउस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज वाई द आंसर इज here pointing device. The words are given here but they are unscrambled and you are going to scramble it and write it in a meaningful word. So children, we have done just one of question number D, but as the time is over, we will do the remaining in tomorrow's video. So children, I hope you all have understood. So you will revise whatever we have done today, you will read it and revise it. So children, we will meet once again in our next video. Till then, thank you.